कोई भी आ सकता है वैसे। Thank you everyone. Jai Jinendra Jito and welcome to the first Nahar JVN 2020 meeting. It is our vision to create a platform that will economically empower Jito members and specifically the Jain community at large. I would like Mr. Rahul Jain to please play the JVN video. Rahul ji, please play the JVN video. भगाने के लिए प्रकाश चाहिए, ऊंचाई तक चढ़ने के लिए विकास चाहिए। हम सबके द्वारा संभव है, पर कुछ कर सकने का विश्वास चाहिए। JBN, Jito Business Network, is a very exciting and very ambitious project for Jito, and I'm very happy the kind of progress is being done. The technology is ready. I think the networking platform is ready. I'm sure the billions of dollars worth of business will happen, especially in the digital world, which is really, I think, connecting the people all across the globe. सर्वांगीण विकास में JBN भी हमारा एक प्रमुख घटक है। JBN के माध्यम से हम समाज के हर तबके को इससे जोड़ करके एक बहुत बेहतरीन आदर्श प्लेटफॉर्म व्यापार के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। JBN is beyond networking. The dividends you can derive from JBN are much more than what LinkedIn can give us. If you have a willingness of giving something, then definitely you are going to get something. And JBN is here providing the proper platform for developing this business. In each and every meeting, they are able to generate crores of rupees business within the member. जीतो बिजनेस डेवलपमेंट नेटवर्क के जरिए मुझे एक बिजनेस जो मिला है, जो वास्तु इंडस्ट्री में अपने आप में एक बड़ा मापदंड है कि 1000 प्रीमाइसेस का 7 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। JBN के थ्रू हमने लास्ट 1.5 ईयर्स में करीब 500 करोड़ वर्थ एसेट इंश्योर किए हैं, एंड विच इज़ अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। तो मेरे सभी जो भी ज़्यादातर शहरों में जो रहते हैं उन्होंने तो JBN ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन जो शहर के बाहर है, जो अपने आप को समझता हम बहुत पीछे हैं, आप JBN में जाओ, सब बड़े बड़े लोग आपको 1-to-1 मिलेंगे। Having associated with JBN as a community since quite some time now, I feel so lucky as a fresher to be a part of this. It's like having an experience of 120 years at the age of 21. Now future plans are, we are trying to arrange meetings within chapter. Other than that, we have already started video conferencing. You will be joining the meeting through video conferencing, where members from all India or even international members can join the meetings. Our app is ready. I request all members to join the JBN app. Definitely, you will get excellent inquiries. We are getting very good inquiries on that app, and members are doing very good business. At JBN, membership is going up day by day. We have not many trade categories like construction, gems and jewelry. Yeah, with this enhancing membership, we will definitely grow strong. And with all these different categories, the day is not far where we start impacting the policy makers of government. If you're not a JBN member, you're missing out on something very important. And I think this is just the beginning. We have to do many more $1 billion of business within ourselves, and that will be the real success story for Jito and JBN. Congratulations and all the best towards this journey. Thank you so much, Rahul ji. And now I'd like to invite Mr. Naveen Duggar ji to please come and say a few words. Naveen Duggar ji. Naveen ji, if you could just please.
Good morning, everybody. It's my pleasure to welcome all on this occasion of our first JBN event for 2021. It's indeed a great pleasure that finally, after a gap of such a long time, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और JBN के इस सीजन को हम किक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहा है शेयर मार्केट, और जब शेयर मार्केट की बात आती है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करें, एक ऐसी सीरीज हम क्रिएट करें जिसमें जो भी लोगों के डाउट्स हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को लेके, पर्सनल फाइनेंस को लेके, कैसे हम इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों को परफेक्टली बैलेंस कर सकें ताकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि हमारी कैपिटल इरोड हो जाएगी, जबकि अगर बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट को किया जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट में दिए हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं और जो हमारे मॉडरेटर हैं वो इस इवेंट को आगे लेके जाएं। तो सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद सभी का मुझे समय देने के लिए। ओवर टू यू इंदु जी। Thank you so much, Naveen ji. I would like to invite Rahul ji. Rahul ji, please, I would like to invite you for say a few words. Thank you, Indu ji. It's my pleasure to be here with all of you. So being a North Zone convener, it's my responsibility to be present in all the meetings. So I am here. And we are missing Abhishek ji due to some personal urgency. He is not there today. He is the chief organizer of the show. तो जैसा नवीन जी कह रहे थे, स्टॉक मार्केट इज इन फ्लेवर, और कहा भी गया अभी तो ये बहुत पॉपुलर कोट है कि रिस्क है तो इश्क है। बट हम ये कहेंगे कि अगर JBN है तो रिस्क भी नहीं है, बिकॉज JBN क्या है, नेटवर्किंग इज नॉट जस्ट अबाउट connecting with people. It is connecting people with people. It is connecting people with ideas. It is connecting people with opportunities. तो हम लोगों को कई बार ये महसूस होता होगा कि भाई we in this pandemic time we don't have much connections, or we are having less direction in our business, or how to increase our investments returns. That's why JBN is there to help in all these spheres. JBN is like friend forever. That's why we say success and JBN is made for each other. तो गौतम जी की इंस्पिरेशन से और संजय जी जो कि अपने JBN एपेक्स चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोड मैप सबके लिए तय किया है ताकि हम सब लोग इस JBN के जो पावर से जो है बेनिफिट करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे FDD है जो कि फ्रेंचाइज नेटवर्क अपना बनाना चाहते हैं, या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए स्मॉल स्केल बिजनेस प्रोजेक्ट है, ताकि जो हम लोग कुछ ही घंटे लगाएं और अपना जो पैशन है वी कैन मोनेटाइज आवर पैशन। सो और भी बहुत सारी चीजें, पर आज का जो फोकस है नेटवर्किंग और लर्निंग। तो नेटवर्किंग से हमें एक दूसरे के बारे में पता लगेगा, एक दूसरे को हम गिव कर सकेंगे। इफ वी आर गिविंग अदर्स वी विल गेट ऑटोमेटिकली। सेकेंडली, जो आज का जो फ्लेवर है इन्वेस्टमेंट्स का, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ हैविंग पैसिव इनकम। अगर हम फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर करें एंड इफ वी बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, देन वी विल श्योरली बी एबल टू फॉलो आवर पैशन। जो आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं वो certainly give us direction in how can we become financially empowered. So मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। Over to Indu ji. She can take it ahead. Thank you. Thank you so much, Rahul ji. And now I would like to invite Mr. Gautam Jain. Gautam ji, please आइए और कुछ शब्द कहें।
Hello. Hello. Other Jai Sadhu Jai Jinendra, everybody. It's wonderful to see the start of the new year, 2021, Jito North Delhi chapter back in action, I would say, after a 8-month hibernation, and that to be the perfect JBN platform. How about getting yourself financially structured and making the best of this time when people are really building upon their true capital base. It's a great initiative, and I congratulate the entire leadership, Sanjeev ji, Naveen Dugar, Rahul bhai, our North Zone Master Blaster, Abhishek ji, Indu ji, everybody, to have led this program. And I look forward to a lot many more events on JBN and building up an entire business regime with supported by education and skill development. Best of luck, and look forward to it. Thank you, Gautam bhai. I would like to invite Parul Rana also. Please, Parul ji, our ladies chairperson, please up. Jai Jinendra. Jai Jinendra to all of you. It takes immense pleasure in extending my sincere thanks to our guest of honor, Vikas ji, Amit ji, and all dignitaries present today. JBN is doing, I think, connecting programs, and these programs are related to ideas, your new ideas, innovations, and creations. I think JBN and JLW will doing a nice job together. And आज जो topic आप लोग लेकर आए investment से related, I think it plays a vital role for all of us. And I think आगे भी आप ऐसे ऐसे topics लेते आए तो JLW भी I think बहुत role बहुत हद तक आगे आएगा. And आपका टाइम कम, आज मेरे पास भी टाइम बहुत कम है क्योंकि मैं बाहर कहीं पे आई हुई हूँ. So good luck to all of you and congratulations to all of you for doing such a wonderful and nice job. Thanks. Thank you, Parul ji. And now I would like to invite all the members to give a short introduction about themselves. I would like to invite Mr. Alok Surana first. Please give a short introduction about yourself, your business, about yourself and your business. Good morning all. I am Alok Surana. I am from Pune. I am into the business of advising only. I am a financial advisor since last 13 plus years, and I am associated with Jito as a patron member. Thank you. Thank you. I would like there's somebody phone number. In the meanwhile, Ankita, please introduce yourself. I think so. There's some issue. Bhishma Bohra ji, आप please अपने आप को introduce करें. Okay. Then we have Mr. Premchand Jain. Premchand ji, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. करके अभी बता रहा हूँ. अभी मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी सर, आ रही है. अच्छा, my name is Premchand Jain. I am chairman of Great Eastern IDTech Private Limited, Gurgaon. We are in technology business. It means we are in the barcode business, radio frequency identification devices, software development, asset tracking. So anybody willing to talk to me, I think I have address on my data sheet. So thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to invite Manan Gupta. Manan, please introduce yourself. I am a member of North Delhi Jito chapter, and we deal in disposable goods which are used in office, restaurants, hotels, and all those things, places. Thank you. I would like members to please at least switch on their videos when they are speaking.
So it is good, like we can all see you when you are speaking. Otherwise, later on, you might want to switch it off. It's fine. But while speaking, please switch on your videos. Kanta Mittal ji, please introduce yourself. हाँ, मैं कांता मित्तल हूँ, मैं बॉम्बे में रहती हूँ और अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। पहले बिजनेस था हमारा, अभी बिजनेस बंद कर दिया, अभी हाउस वाइफ हूँ। Okay, thank you so much, ma'am. And Nitish Doshi. Nitish. Parul Jain ji, please introduce yourself. Hi everyone, this is Parul. I'm not a professional, I'm not a working individual. I'm a student currently at IIM Indore pursuing MBA. Thank you. Thank you. There's somebody by the name Galaxy Tab S6 Lite. Please just rename yourself. And then we have Pooja Kothari. Pooja ji, please introduce. Pooja Kothari. Rakhi. Somebody by the name Rakhi's iPhone. Rakhi ji, if you could introduce yourself. We have Vinay ji also here. Vinay ji, please, you please introduce yourself. Vinay ji, you are on mute. जय जिनेंद्र, मेरा आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। जय जिनेंद्र, I am Vinay Rayada from Jito North Delhi chapter. I am into business of printing and packaging, offset printing, cartons, boxes, labels, etc. Thank you. Thank you so much. Shubhang Jain. Shubhang ji, please unmute yourself and introduce yourself. Sachin Jain ji, please introduce yourself. Anybody else who would like to introduce themselves? We have some phone numbers with their names with their only Galaxy Tab S6. Please introduce yourself. We have yeah, please. Can you just know who's speaking? We have somebody by the code name of B8DCF6FE7. Hello. Yeah. Am I audible? Yes, you are. May I know your name? My name is Vinayak Bhosle from Shulapur. Okay. I am working in financial sectors last 10 years. Okay. Okay. I'm interesting in shares पर पुराने जो रहते हैं उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, तो बहुत से कस्टमर आते हैं तो प्रॉब्लम आता है, तो शेयर समाधान ने ये बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक किया है, इसलिए मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। Thank you so much. Okay. So thank you, members. If anybody else would like to give their introduction, Sachin Jain ji, if you would like to speak. Yeah, I am. Hello, I'm Sachin Jain from Delhi. We are into energy saving BLDC ceiling fans. Okay. Thank you so much, Sachin ji.
Hello friends, I'm Indu Jain. I'm in the business of insurance and investments. So we help you save and secure your lives as well. And now I would like to invite Mr. Deepak Jain to please take the program forward. Deepak ji, please invite our guest and please take the program forward. Thank you. Over to you, Deepak ji. Deepak ji, please unmute yourself. Am I audible now? Yeah. Hello, friends. Welcome to the first NAHA JBN Meet 2021 organized by Jito North Delhi. I'm Deepak Jain. I'm an avid investor in the stock market and started my career in 1991 during the Risk Hai, Ishq Hai era. I studied financial planning, completed AFP modules, and I'm an avid reader. Warren Buffett, Peter Lynch, and Benjamin Graham are few of my favorite writers. Today's topic is personal finance, create, preserve, and retrieve. And we have two highly enlightened and proficient speakers with us today for the same. We welcome our first speaker for the day, Mr. Amit Grover, who has a 15-year career with experiences at Standard Chartered, HSBC, Sundaram Mutual Fund, and IDFC. Mr. Grover is a mechanical engineer, an MBA in marketing finance, and a CFA level 3 candidate by education, and is currently head of learning and development at DSP Mutual Fund. He has been guiding people on investments, asset allocations, market behavior through his webinars and online videos, and is here with us today to share his wisdom that he has gathered over the years. Our second speaker today is Mr. Vikas Jain, co-founder at India's largest unclaimed investment advisory firm, Share Samadhan, which is also referred to as Sare Samadhan, क्योंकि उस एक एडवाइजरी में सारे समाधान सबको मिल जाते हैं. विकास भाई comes from a town famous for one-horned rhino, Kaziranga. He is a chartered accountant and company secretary by profession. Share Samadhan is probably the only professional entity helping people recover their money and investments. They have recently launched an online Wealth Samadhan card, wherein the investor can store details of their financial investments and share the same with their family. He has been a true savior for investors looking to recover lost money. A patron member of Jito North Delhi, we welcome him to share with us his insights on the topic. First, I would like to request Mr. Amit Grover to take over and enlighten us. Thank you. Thank you, Deepak ji. Thank you all the participants who have logged in today. Wish you a very, very happy new year. Today's session is about personal finance. दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो किसी को होता है वो एक्चुअली फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है. एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो सब्जेक्ट है पर्सनल फाइनेंस, दिस शुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट विच शुड बी टॉट इन स्कूल. बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल के आप करिकुलम देख लीजिए, कॉलेज का करिकुलम देख लीजिए, इनफैक्ट आप हायर एजुकेशन में भी देख लीजिए, ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है पर्सनल फाइनेंस, अनफॉर्चुनेटली ये सिखाया नहीं जाता. इसीलिए हम सब लोग बहुत सारी गलती करते हैं पर्सनल फाइनेंस को लेके. टुडे इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस है पर्सनल फाइनेंस को लेके वो कम हो जाए. बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई वांट टू ब्रेक वन मिथ. लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स जनरली इज अ मैन्स बिजनेस. इट्स नॉट अ मैन्स बिजनेस. देखा गया है परिवार में, हाउसेस में, जहां हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स का, पर्सनल फाइनेंस का, they are much more happier and they're able to achieve their goals. आपको लगता होगा पर्सनल फाइनेंस समझने के लिए बहुत फाइनेंस की नॉलेज चाहिए होगी, बहुत इकोनॉमिक्स को समझने की जरूरत होगी, कंपनियों के बारे में बहुत समझना पड़ेगा, CNBC और बहुत सारे अखबार पढ़ने पड़ेंगे. ऑनेस्टली ये सब चीजों की कुछ जरूरत ही नहीं है. एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अगर आपको गाड़ी चलानी है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. इंजन कैसे काम करता है, क्लच कैसे काम करता है, बेयरिंग कैसे काम करता है, ये सब समझने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ बेसिक आइडिया पता होना चाहिए. सिमिलरली मेरे पास एक मोबाइल फोन है,
आपको अगर गूगल मैप यूज करना है या व्हाट्सएप यूज करना है या फेसबुक यूज करना है, उसके लिए आपको पूरा का पूरा मोबाइल कैसे काम करता है, एंड्रॉइड और ऑपरेटिंग सिस्टम समझने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें अगर आपको समझ होगी, आप सब लोग अचीव कर पाओगे। कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटेलिजेंस नहीं है, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए वो है कॉमन सेंस और बिहेवियर मैनेजमेंट। और मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे क्या आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे, और यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर बिहेवियर एंड नथिंग एल्स। देखा गया है दुनिया में वही लोग अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं जिनका बिहेवियर और इमोशंस कंट्रोल में रहता है। जिनके पास बहुत नॉलेज होती है बट इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी बड़े बड़े क्वालिफिकेशन क्यों ना हो आपके पास, आप फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं हो सकते। So let me start the session with the first slide. And सबसे बड़ी मिस्टेक जो जनरली लोग करते हैं इस ठीक है, लोग पढ़ाई करके काम करके पैसा तो कमाना शुरू कर देते हैं, बट अगर ऑनेस्टली उनसे पूछो कि ये पैसा कमा किस पर्पस के लिए रहे हो, वो कभी उनको पता ही नहीं होता। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन लाइफ इज टू बी वेरी क्लियर कि फॉर व्हाट पर्पस आई एम अर्निंग दिस मनी, व्हाट आर माय गोल्स। मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मेरे मीडियम टर्म गोल्स क्या है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जनरली लोगों के शॉर्ट टर्म गोल होते हैं कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मे बी मीडियम टर्म गोल होता है कि घर खरीदना है, शॉर्ट टर्म गोल होता है कि मुझे शायद वेकेशंस पे जाना है, लॉन्ग टर्म गोल्स ये हो सकता है कि मुझे अपने बच्चों की शादी करानी है, बच्चों की हायर एजुकेशन करानी है, और सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि मुझे अपने रिटायरमेंट का ख्याल रखना है। जनरली आपको सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करना है, और गोल्स बहुत प्रिसाइज होने चाहिए। मैंने देखा है लोग बहुत वियर्ड गोल और बहुत ही रैंडम गोल्स बोलते हैं कि मुझे पूरा दुनिया देखना है। बहुत ही रैंडम गोल है, आपको डिफाइन करना है कहां देखना है, कितना अमाउंट लगेगा और कब देखना है और किस तरीके से देखना है। ख्वाहिशों में और नीड्स में और प्लानिंग में बहुत फर्क होता है। डिजायर्ड गोल्स एंड विजुअल थिंकिंग में बहुत फर्क होता है। जो आपके रिक्वायर्ड गोल्स है ना, उनको पहले लिख लीजिए। एक अनफॉर्चुनेट पॉइंट जो मैंने देखा है हिंदुस्तान में कि सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल होना चाहिए लोगों का, जबकि वो है रिटायरमेंट, लोग सबसे ज्यादा उसको इग्नोर करते हैं। और उसका रीजन मैं समझाता हूं क्यों इग्नोर हो जाता है। देखो, एक चीज जो हमारी जनरेशन देखने वाली है, जो प्रीवियस जनरेशन ने शायद कम देखा है, वो है रिटायरमेंट। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप 1980 में 1980 में लोगों की मोर्टेलिटी एज, मतलब जब तक वो जीते थे, वो एज देखोगे, एवरेज वाज 48-49 इयर्स मोर्टेलिटी। आप, ये मैं वर्ड एवरेज बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं सब उतना जीते थे, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कुछ ज्यादा कुछ कम। आज एज पर WHO द मोर्टेलिटी एज ऑफ इंडिया इज 69 इयर्स। ओके, और ये मैं आज के हिसाब से बात कर रहा हूं, और मैं पूरे 138 करोड़ आबादी के हिसाब से बात कर रहा हूं। हमें लगता होगा कि चलो ठीक है 70 अच्छी हो गई है, बट एक्चुअली 70 इज कंपेयर टू अफ्रीकन कंट्रीज। अगर आप वर्ल्ड का मोर्टेलिटी एज देखोगे, इट हैज इंक्रीज्ड technically, especially Europe, Japan and countries, Australia or maybe even US, it has reached 90. In some countries it is even 95. Most likely we will live till the age of 80, 85, 90. अगर आप 50, 55 पे रिटायर होते हो, we'll have a 30 years of long retirement. Very important, सबसे पहला गोल जो आपका होना चाहिए, जिसके लिए आप सेव कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, should be your retirement. That's the first important thing. हम वेस्ट को तो अच्छा कॉपी कर रहे हैं खर्चे करने में, ओके, बिकॉज हमने वेस्ट की फिलॉसफी अडॉप्ट करनी शुरू कर दी है कि यू ओनली लिव वंस, तो जितनी इंजॉयमेंट करनी है आज कर लो, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। बट द प्रॉब्लम इज कि वेस्ट में गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है। जॉब चली जाएगी तो आपको बोनस मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। आपको मेडिकल की प्रॉब्लम्स होती हैं तो गवर्नमेंट उसका भी ख्याल रखती है, आपको पेंशन भी मिलता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ना गवर्नमेंट आपको मेडिकल में हेल्प करेगी, ना पेंशन में हेल्प करेगी, ना आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए हेल्प करेगी, वहां पे वो भी सब्सिडाइज हो जाता है। इसीलिए सेविंग एंड प्लानिंग हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और किस तरीके से हम प्लान और सेव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आई जस्ट से वन लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने गोल्स को डिफाइन करो, उसके बाद आगे काम करना शुरू करो। एक बार अपने गोल्स डिफाइन कर दी हैं, गोल्स डिफाइन करते वक्त एक इनविजिबल, never forget one invisible enemy which is called as inflation और महंगाई।
महंगाई को मैं एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा. I'm sure everybody has watched an iconic movie called as Diwar. This movie was released in 1975. इसका cost of a movie ticket was 3 rupees. आज आपको कोई मल्टीप्लेक्स में थिएटर में मूवी देखनी है वो 300 रुपए की पड़ती है. 45 years में 3 rupees has become approximately 100 times. The same thing has happened with me. When I did my engineering back in 2000, मेरी साल की फीस 5,000 रुपए थी. आज टेक्निकली मेरा सन हु इज इन क्लास 3, उसके साल की फीस 1 लाख रुपए है. दिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन. महंगाई 1000 साल पहले थी, 100 साल पहले थी, आज है और अगले 50-100 साल तक रहेगी. सो काफी लोग जो सोचते हैं कि ना कि मेरे पास इतना पैसा जमा हो जाएगा तो उतना काफी है. प्रॉब्लम क्या है कि आज के हिसाब से सोचते हैं. 15, 20, 25 सालों में उस पैसे की कीमत रोज गिर रही होती है, हर दिन गिरती है. तो आज जो आपको चीजें पैसा बड़ा लगता है, 20 साल बाद वही पैसा कम लगेगा. दैट्स व्हाई सेविंग तो करो ही करो और महंगाई को दिमाग में हमेशा याद रखो. अभी तो आपने बात सुन ली कि अच्छा गोल्स डिफाइन कर लिए, महंगाई का पॉइंट समझ लिया, अब अचीव कैसे करूं अपने फाइनेंशियल गोल्स. सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन यू किस तरीकों से, in which places should we can invest and save so that we can achieve our goals. If in case, please keep the chat box open. If you think that I'm going a little fast, if I'm complicated, if in case there's certain topic you're not understanding, please let me know. I'll repeat it further for your benefit. Now, first thing, the hero of the entire story, unfortunately, which has a very bad name, is called as equity. And I will tell you, I was listening to everybody's profile and I feel very happy that you are doing amazing businesses, and more luck and success to all of you. 2020 has been a tough year, but hopefully you should do very well in your life. Now let me explain what do you mean by equity investment. मैं इतना मानता हूं बहुत सिंपल भाषा में कि दुनिया में एक ही बंदा पैसा बनाता है और वो है बिजनेसमैन. Only businessmen make money. Now your question would be, if you think businessmen make money, then Amit, why do you work with DSP Mutual Fund? Why don't you start your own business? I say yes. मैं फिर बोलता हूं बिजनेसमैन पैसा बनाता है, इसीलिए मैं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूं. एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? टेक्निकली ये सारे बिजनेसेस मेरे आंखों के सामने है जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूं. जब मैं दीवार को देखता हूं तो मुझे एशियन पेंट, नेरोलैक दिखाई देता है. When I look at further, I can see cement company, ACC, Ultratech Cement. जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे ब्रश करता हूं, I can see Pepsodent और Colgate. हिंदुस्तान लिवर कंपनी है और Colgate. जब मैं आटा खाता हूं तो मुझे ITC का आशीर्वाद आटा दिखाई देता है. जब मैं बच्चों को दूध देता हूं, नैन में नेस्ले दिखाई देता है, या बच्चे मैगी खाते हैं तो मुझे नेस्ले दिखाई देता है. जब मैं बैंक में जाता हूं तो मुझे HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस दिखाई देता है. जब मैं कार लेके जाता हूं तो मुझे मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स दिखाई देते हैं. टू व्हीलर देखता हूं तो मुझे हीरो, बजाज, टीवीएस दिखाई देता है. कार के अंदर देखता हूं तो मुझे ऑटो एंसिलरी कंपनी दिखाई देती है, गियर, इंजन. बैटरी देखता हूं तो अमर राजा, एक्साइड दिखाई देती है. टायर देखता हूं तो बालकृष्ण इंडस्ट्री, MRF, अपोलो दिखाई देती है. शॉपिंग करने जाता हूं तो डीमार्ट, शॉपर स्टॉप दिखाई देता है. इनफैक्ट डीमार्ट में मैं व्हाटएवर आई एम बाइंग, these are listed companies over there. I am doing this session right now on Airtel broadband. मुझे एयरटेल कंपनी दिखाई देती है, मुझे रिलायंस दिखाई देता है. इनफैक्ट ऊपर जो दिख रहा है आपको दुनिया का बिगेस्ट रिफाइनरी है, रिलायंस इंडस्ट्री. द आइडिया इज वेरी सिंपल. अभी फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से 24 घंटे हमें दवाइयों का ख्याल आता है. मुझे सन फार्मा, सिप्ला, इप्का लेबोरेटरीज, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ये कंपनीज दिखाई देती हैं. जब मैं कोई दिल्ली में मेट्रो में ट्रैवल कर रहा होता हूं, जब भी कोई स्टेशन पे जाता हूं तो मुझे L&T, ये दिखाई, इंफ्रा कंपनीज दिखाई देती हैं. मुझे पावर कंपनीज दिखाई देती हैं. कहने का मतलब क्या है? व्हाट इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट? इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सिंपल टर्म्स इज इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस. जब आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो, यू बिकम अ पार्ट ओनर इन दिस कंपनी, एंड व्हेन यू बिकम अ पार्ट ओनर इन दिस कंपनी, एज दिस कंपनीज ग्रो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अभी आपका पैसा भी बच जाता है. अभी आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आएंगे. पहली बात तो मुझे तो समझ ही नहीं है कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, और दूसरी बात कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए. ये 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं. पहले मैं आंसर करता हूं पहला क्वेश्चन कि कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसको लॉजिक बहुत सिंपल है. हमारे लाइफ में 2 तरीके होते हैं जब हम किसी और को चीज सौंपते हैं हमारे लिए मैनेज करने के लिए. फर्स्ट चीज, जब वो हमें चीज नहीं आती करने. फॉर एग्जाम्पल,
अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मैं एक ड्राइवर रख लूंगा, बिकॉज मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती। और दूसरे केस में आउटसोर्स कब करता हूं, समझो मुझे ड्राइविंग करने आती है, बट फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ही घंटा कार में ड्राइव नहीं करना बिकॉज मैं थक जाता हूं, मैं चाहता हूं कोई और ड्राइव कर ले, सो दैट वो 1 आवर मैं प्रोडक्टिवली कुछ और काम कर सकूं। सो यू आउटसोर्स इन 2 थिंग्स। जब फर्स्ट चीज जब आपको आती नहीं है, सेकेंड इज जब आपके पास टाइम और एनर्जी नहीं है करने के लिए। और इसीलिए म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे डीएसपी एक म्यूचुअल फंड है, हमारा एक फंड है, एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं, उसका नाम है डीएसपी इक्विटी फंड। ओके, ये फंड को 23-24 साल हो गए हैं। ये फंड मैनेज करता है एक फंड मैनेजर, कुछ 6000 करोड़ का फंड है, इसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। इसके साथ इनकी एक टीम होती है एनालिस्ट की। एक एनालिस्ट टेलीकॉम देखता है, एक बैंकिंग देखता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, एक फार्मा देखता है। तो ये सब टीम मिलकर डिसाइड करती है कौन सी कंपनियों में निवेश करना है। एडवांटेज क्या होता है, व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू अ म्यूचुअल फंड, योर मनी इज नॉट इन्वेस्टेड इनटू वन कंपनी और वन सेक्टर, योर मनी गेट्स डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मेनी कंपनीज एंड मेनी सेक्टर्स। मतलब जब आप पैसा लगाते हो, बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगता है, बहुत सारे सेक्टर में पैसा लगता है, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। ये तो फाइनेंशियल जार्गन है। डाइवर्सिफाई मतलब वही पैसा बहुत सारी अच्छी कंपनियों में लग जाता है, और जिनमें लगता है वो रिसर्च बेस्ड लगता है। फंड मैनेजर उन कंपनी की बैलेंस शीट चेक करता है, उनके मैनेजमेंट से मिलता है, ये समझने की कोशिश करता है फ्यूचर में कंपनी कैसे लगेगी, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाता है। एंड दैट्स हाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स help you in creating wealth. I hope everybody has understood what is equity and what is the how does mutual funds play a very, very big role. And that's why I always recommend all the investors generally to go through a mutual fund route. It's very simple. आपने सौंप दिया उनको पैसा, वो एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, बहुत मतलब वाय से छोटी सी, बिकॉज वो आपके लिए अकेले काम नहीं कर रहे, हजारों लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स आपके जैसे मेरे जैसे उनको पैसा देते हैं। So technically cost per person बहुत छोटी आ जाती है, and that's the beauty of equity mutual fund. It's like आप Amazon Prime पे एक सीरीज देखते हो जो करोड़ों रुपए में बनती है, बट आप तो सिर्फ महीने का सिर्फ 100 रुपए देते हो और इतना सारा टेलीविजन एंजॉय कर पाते हो। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ सेल। That's why mutual funds is a very good option. अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मैं इक्विटी की बात करता हूं और बिजनेस की बात करता हूं ना, तो लोग रिटर्न और जब भी आप दुनिया में कुछ भी करते हो, आपको 2 चीज देखनी है। एक तो इसका रिटर्न क्या होगा लंबे समय पे, और इसमें रिस्क क्या है। तो मैं कोशिश करता हूं, मैं आपको रिटर्न भी बताता हूं और रिस्क भी बताता हूं। प्रॉब्लम क्या होती है, आप अगर एक सिर्फ रिटर्न पे फोकस करोगे तब भी गलती कर दोगे। रिटर्न और रिस्क हमेशा साथ में चलते हैं, और दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं। सेंसेक्स, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड सेंसेक्स मेनी टाइम्स, maybe in conversation or maybe in media, or maybe आपने कभी CNBC ऑन किया होगा, आपने वर्ड सेंसेक्स सुना होगा। सेंसेक्स is nothing but the top 30 companies of the country. Sensex was formed approximately in 1980. 1980 में ये सेंसेक्स वर्ड बना था, जो ये टॉप 30 कंपनीज हैं। इनफैक्ट दिस डे इज वेरी सरप्राइजिंग इंटरेस्टिंग फॉर मी, बिकॉज उस साल मैं भी पैदा हुआ था। अगर किसी ने, या अगर मेरे पिताजी ने उस समय 1 लाख रुपया सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दिया होता 40 इयर्स बैक और 41 इयर्स बैक, 1 लाख रुपए, आज उसकी वैल्यू 4.9 करोड़ होती। मैं फिर रिपीट करता हूं, बिकॉज वो 100 रुपए का इंडेक्स वाला सेंसेक्स आज 49,000 पे है। मतलब किसी ने अगर 40 साल पहले या 41 इयर्स पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो उसकी वैल्यू आज 4.9 करोड़ होती। कहने का मतलब ये नहीं है, आप बोलोगे वाओ ये तो बहुत बेहतरीन रिटर्न है, क्या लंबे दौर में सही में इतने पैसे बन जाते हैं? यस, बन जाते हैं। और काफी लोगों को लगता होगा कि ये पूरी जर्नी ना एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगी। ऑनेस्टली इक्विटी मार्केट लाइफ की तरह होती है। जैसे लाइफ एक सीधी लाइन की तरह नहीं चलती, इक्विटी मार्केट भी एक सीधी लाइन की तरह नहीं चलती। लाइफ में उतार चढ़ाव लगा रहता है, इक्विटी मार्केट में भी रोज उतार चढ़ाव लगा रहता है। देयर आर इयर्स इन इक्विटी मार्केट जब इक्विटी मार्केट इस तरीके से भागती है जब आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है इक्विटी मार्केट में, और कभी कभी इक्विटी मार्केट इस तरीके से गिर जाती है कि लगता है कि एवरीथिंग विल गेट ओवर। एंड देन देयर आर फ्यू इयर्स इन इक्विटी मार्केट जब इतना बोरिंग वक्त आ जाता है कि जब 4-4 साल इक्विटी मार्केट में कुछ भी नहीं होता, मतलब एकदम वही मार्केट उसी लेवल पे रहती है 4-5 साल तक,
और कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, जो खराब वक्त आता है कि ऐसा लगता है कि आप 3-4 साल पीछे आ गए हो, और वापस कुछ ऐसा अच्छा वक्त आता है कि आप वापस सब पूरा का पूरा कंपनसेट कर लेते हो। दिस इज द जर्नी ऑफ अ इक्विटी मार्केट, और यही जर्नी मैं आपको डेटा के पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूं। दिस इज द जर्नी ऑफ लास्ट 20 इयर्स। ओके, 2000 से लेके 2021 13 जनवरी की मैंने एक जर्नी दिखाई है निफ्टी की। अभी आप पूछोगे ये निफ्टी क्या है? इंडिया टॉप 50 कंपनीज आर कॉल्ड एज निफ्टी। निफ्टी की जर्नी कुछ इस तरीके से है। लेट्स इमेजिन, मैं आपको एडवाइस करता हूं, सर यू शुड और मैम यू शुड इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स यूजिंग अ म्यूचुअल फंड रूट, and you will make good returns, and you say, wow, I like your idea, I want to make good returns, let me invest some money. You invested in 2000, but unfortunately 2001 और 2002 में कोई रिटर्न नहीं बनते, ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है। आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप बोलते हो कि आपने तो इतने बड़े बड़े सपने दिखाए कि बिजनेस में डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में डाल रहे हैं, 2 साल हो गए पैसे बने ही नहीं, मेरे को नहीं डालना यहाँ पैसा। इंटरेस्टिंगली 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007, ये 5 साल इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। यू मेक अमेजिंग रिटर्न्स ड्यूरिंग दीज टाइम्स। ड्यूरिंग दीज टाइम्स यू फील कि सारा पैसा इक्विटी में ही होना चाहिए। एंड देन व्हाट हैपेंस, 2008 हुआ। 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, जिसके वजह से मार्केट 50% गिर गई। कितना? 50% गिर गई। इस समय ऐसा लगता है कि इक्विटी मार्केट सट्टा है, फ्रॉड है, मुझे बेवकूफ बना दिया गया था, मैं इक्विटी मार्केट में कभी नहीं आऊंगा, यहाँ पे सब चोर होते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स आती है। उसके अगले ही साल 2009 में मार्केट वापस बढ़ गई। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 2-3 साल वापस मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए। 2014 से लेके वापस 2019 तक मार्केट बढ़ती रही। 2020 में अचानक कोविड एंड पेंडेमिक एंड द ग्लोबल फियर आ जाता है, मार्केट वापस 36% गिरती है, वापस बाउंस बैक हो जाता है, एंड एज वी स्पीक मार्केट राइट नाउ इट्स 49,000 लेवल। अभी आप पूछोगे मैंने ये पूरी जर्नी क्यों समझाई? देखो, मेरे लिए जर्नी इज अ जर्नी ऑफ अ बिजनेसमैन। मैं आज आई एम श्योर, मैं आज जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनको 15, 20, 25, 30 साल हो गए मार्केट में, मैं उनसे उनकी जर्नी की बात समझने की कोशिश करूंगा ना, वो एग्जैक्टली बोलेंगे कि मेरी लाइफ की जर्नी भी ऐसी ही कुछ थी। कभी कुछ साल बोरिंग निकलते हैं, कभी कुछ साल बहुत अच्छे निकलते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे भी साल आते हैं जब सब कुछ लगता है कि खत्म हो जाएगा, कभी कभी कुछ साल ऐसे भी होते हैं 2-3 साल इंसान की शॉप पे जाने का दिल भी नहीं करता, और कभी कभी 4-5 साल बहुत पैसा बनता है। दिस इज द जर्नी ऑफ अ बिजनेसमैन, दिस इज द जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। अभी नाउ पीपल जनरली आस्क मी, and I'll give you my example. Generally people ask me what is the time horizon when investing into stocks, and my answer is simple. आपने कंपनियों में निवेश किया है, ask a businessman what is your time horizon. Every businessman will say my time horizon is 20 years, 30 years, I want my children to run this company. So when you're investing into equity, you know, your horizon should be not 1 year, 2 year, 3 year, 5 year. You should talk about decades. 1 decade, 2 decade, 30 साल, उतना लंबा पैसा रखिए, तभी जाके पैसा और वेल्थ क्रिएट होता है। एंड दैट्स माय फर्स्ट रिक्वेस्ट, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, आप डेकेड्स की बात कीजिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तब जाके पैसा बनता है। मिनिमम 10 साल तो आपका होराइजन होना ही चाहिए जब आप इक्विटी में निवेश करते हो, और ये जर्नी हमेशा याद रखिए। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, नाउ आई टॉक अबाउट idea of asset allocation. अभी what is asset allocation? कहने का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा आपको इक्विटी में डालना है। No, that's not my idea. हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है, इक्विटी जो वेल्थ क्रिएट करता है, फिक्स्ड इनकम जिसको एफडीज की तरह कहते हैं जो आपको कैपिटल प्रोटेक्शन देता है, और थोड़ा बहुत गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में जो अनसर्टिनिटी में सुख दुख पे काम आता है। और अगर आप HNI हो, सुपर HNI हो, तो थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में भी डाल सकते हो। ओके, एग्जांपल देता हूं, ये सबकी जरूरत क्या है। कुछ वक्त इसको बोलते हैं हमारी भाषा में, फाइनेंशियल लैंग्वेज में, एसेट एलोकेशन। जब देखो क्या होता है एसेट एलोकेशन का मतलब, आई एम श्योर कुछ लोग क्रिकेट के भी शौकीन हैं, मैं आपको आज का एग्जांपल देता हूं। कभी विराट कोहली अच्छा खेल देता है, कभी रोहित शर्मा अच्छा खेल लेता है, कभी अजिंक्य रहाणे अच्छा खेल लेता है। आपको जब भी कोई क्रिकेट टीम बनाते हो, आपको 3 अलग पर्सनैलिटी वाले प्लेयर्स होने चाहिए। उसी तरीके से कभी कभी इक्विटी मार्केट अच्छा करती है,
कभी कभी इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं कर रही होती, आपको एक सफिशिएंट कुशन चाहिए होता है। जब मार्केट गिरती है तो आपके पास एक कुशन भी होना चाहिए। तो एक फिक्स्ड इनकम, जो एफडीज कहते हैं या फिक्स्ड इनकम कहते हैं, वो होना चाहिए। और थोड़ा बहुत गोल्ड भी होना चाहिए अनसर्टिनिटी के लिए। अब एक गोल्ड में भी लोग जनरली इंडिया में फिजिकल गोल्ड प्रेफर करते हैं। मेरा हमेशा मानना है फिजिकल गोल्ड से बेटर फाइनेंशियल गोल्ड है, जहां पे आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालिए। और उसका रीजन क्या है मैं आगे समझाता हूं क्यों होना चाहिए। बट दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा इक्विटी में डालिए, थोड़ा फिक्स्ड इनकम में डालिए और थोड़ा सा गोल्ड में डालिए। गोल्ड में एलोकेशन 5 से 15% ठीक रहता है। इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर और आपके साइकोलॉजी के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कितना प्रतिशत होना चाहिए ये तीनों में, सो दैट आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सको। सबसे पहले ये तो होता है आपके गोल्स के हिसाब से। आपको मैं एक बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूं एक पर्सन का जो अपनी एसेट एलोकेशन किस तरीके से करता है। लेट्स इमेजिन अगर आप यंग हो और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज आपके गोल्स बहुत लॉन्ग टर्म के हैं। तो आप ज्यादा लंबे का सोच सकते हो, ज्यादा इक्विटी रिस्क ले सकते हो। जैसे आपकी एज ज्यादा बढ़ती है 30, 35, 40, 45, 50 की तरफ होती है, तो ऑब्वियसली आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको इक्विटी आइडियली उतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और जैसे ही आप अपने रिटायरमेंट के नजदीक आते हो 60, 65 की तरफ, 60 की तरफ, आपका इक्विटी मॉडरेट होना चाहिए। अभी आप पूछोगे राइट एलोकेशन कितनी है, कितना प्रतिशत होना चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट परसेंटेज। इसमें कोई राइट परसेंटेज नहीं होती है। इट्स लाइक सेइंग कि मैं बॉम्बे से आगरा हाईवे पे, सॉरी दिल्ली से आगरा हाईवे पे जा रहा हूं, कितनी स्पीड पे गाड़ी चलाऊं। इट डिपेंड्स। कोई लोग 60 की स्पीड पे कंफर्टेबल हैं, कोई 80 की, कोई 100 की, कोई 120 पे चलाना प्रेफर करेगा। इसमें कोई राइट स्पीड नहीं होती है। इसमें आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूं फॉर अ पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। 1954 में एक पर्सन थे मिस्टर हैरी मार्कोविच। ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर बिल्डिंग अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला कि कितना राइट एसेट एलोकेशन होना चाहिए। ओके, इट्स अ वेरी मैथमेटिकल फॉर्मूला। बट जब उनसे पर्सनली पूछा गया ना कि आप क्या ये फॉर्मूला यूज करते हो अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन डिसाइड करने के लिए, वो बोलते नहीं, वो सिर्फ नोबेल प्राइज के लिए था, मेरा एलोकेशन कुछ अलग तरीके से है। मैं 50% इक्विटी में रखता हूं पैसा और 50% फिक्स्ड इनकम मतलब एफडी जैसे चीज में रखता हूं। तो लोगों ने उससे पूछा ये 50-50 का लॉजिक क्या है। तो हिज आंसर वाज सिंपल। वो कहते थे जब मार्केट बढ़ती है तो मैं बहुत खुश होता हूं कि चलो शुक्र मानो मेरे पास थोड़ा सा इक्विटी है पोर्टफोलियो में, और जब मार्केट गिर जाती है तो मैं शुक्र बनाता हूं भगवान का कि मेरे पास फिक्स्ड इनकम है, तो मुझे आराम से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बोलते ये 50-50 एलोकेशन के साथ ना मैं रात को आराम से चैन की नींद सो पाता हूं। लुक एट द ब्यूटी। उन्होंने इस तरीके से एसेट एलोकेशन बनाया जिसके साथ वो रात को चैन की नींद सो पाते हैं। जब मैंने ये फिलॉसफी पढ़ी, मैं वही फिलॉसफी अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन में करने की कोशिश करता हूं। नाउ विल कम टू द एप्लीकेशन, बिकॉज थ्योरी तो ठीक है। नाउ विल कम टू माय एप्लीकेशन। आई एम अराउंड 40 years old। मैं आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर रहा हूं वो बताता हूं, वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा। मैंने 60% इक्विटी में रखा हुआ है, 30% मैंने डेट में रखा हुआ है फिक्स्ड इनकम में, और 10% गोल्ड में रखा हुआ है। गोल्ड जनरली मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदता हूं और थोड़े बहुत सॉवरेन बॉन्ड फंड खरीद लेता हूं। डेट म्यूचुअल फंड्स में रखता हूं बिकॉज इसमें टैक्सेशन एफिशिएंट होता है। एफडी में मुझे हाई टैक्स भरना पड़ता है, बिकॉज एफडी में जो ब्याज मिलता है उस पर 30% टैक्स लगता है। मैं वो टैक्स नहीं भरना चाहता, इसलिए मैं डेट म्यूचुअल फंड में डालता हूं जहां पे टैक्सेशन बहुत अच्छी होती है, और मेरा 60% इक्विटी में है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आप जोड़ किसके ले रहे हो। मैं दो चीज के लिए जोड़ रहा हूं। फर्स्ट तो मेरा रिटायरमेंट, जो मुझे पता है मोस्ट 100% आएगा। दूसरा मेरे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, और तीसरा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है और लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है कि कोई भी अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है। और एक मैंने थोड़ा सा अराउंड 6 महीने की सैलरी इमरजेंसी फंड में डाली हुई है। आप पूछोगे इमरजेंसी फंड क्यों? हम जिस प्रोफेशन में होते हैं जॉब कभी भी जा सकती है, लाइफ इज ऑलवेज अनसर्टन। कोविड ने तो दिखा दिया और समझा दिया लाइफ तो अनसर्टन होती है। थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए कि जब भी दुनिया में सुख दुख लग जाए तो ये पैसा हेल्प करना चाहिए। अभी आप पूछोगे 60, 30 और 10 का कॉम्बिनेशन का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है?
माय लॉजिक इज वेरी सिंपल, इस पोर्टफोलियो के साथ मैं रात को आराम से सो सकता हूं। जब मार्केट बढ़ती है तो मैं शुक्र बनाता हूं भगवान का कि मेरे पास 60% इक्विटी है। जब मार्केट गिरी, जैसे 2020 मार्च में मार्केट गिरी, मैं ये भी कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी एंड थैंक गॉड कि मेरे पास 30% डेट है पोर्टफोलियो में। और जब मार्केट थोड़ा खराब कर रही होती है उस टाइम गोल्ड अच्छा करता है, तो मेरा गोल्ड बैलेंस आउट कर लेता है। जब इक्विटी मार्केट गिरती है तो गोल्ड थोड़ा ऊपर जाके मेरा पोर्टफोलियो को भी बचा लेता है। विद दिस एलोकेशन आई कैन स्लीप वेरी वेल। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको जानता नहीं हूं। आपके गोल्स बहुत डिफरेंट हैं, आपकी लाइफ के सिनेरियोज बहुत डिफरेंट है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत डिफरेंट है, और आपको पैसे का देखने का नजरिया भी बहुत डिफरेंट है। शायद आप बिजनेस में ज्यादा रिस्क ले रहे हो, मैं अपने लाइफ में इतना रिस्क नहीं ले रहा बिकॉज आई एम डूइंग अ सर्विस जॉब। सो आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो शायद आप पोर्टफोलियो थोड़ा कंजर्वेटिव बना सकते हो, बट वो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यू हैव टू टॉक टू योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर और अ पार्टनर who can help you to make a right financial planning for yourself. This program is just to introduce you to the idea of financial planning. यहाँ से आपको solutions नहीं मिलेंगे, आपको एक understanding मिलेगी so that you are able to have right conversation with your financial advisor or a plan planner over there. I'll tell you about a very interesting concept. जिस concept को actually सबसे ज्यादा, इनफैक्ट ये concept को हर एक स्कूल में सिखाना चाहिए, 5 साल के बच्चों को, 7 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चों को। इट्स अ कंसेप्ट ऑफ SIP. SIP इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा होगा, बट एक्चुअली इसका मतलब बहुत सिंपल है। आई एम श्योर जब हमने अपने पेरेंट्स को देखा, हमने देखा अपने पेरेंट्स हर महीने कुछ पैसा जोड़ते थे। इट वाज सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिंग ऑन अ मंथली बेसिस। वो हर महीने थोड़ा बहुत गोल्ड भी खरीद लेते थे, वो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे थे गोल्ड के अंदर। हम बच्चों को भी बोलते हैं कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो, हम उनको समझा रहे हैं कि जोड़ना हर महीने थोड़ा बहुत, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। इन द सेम फैशन, इन द फाइनेंशियल लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड SIP. इसमें क्या होता है, यू गिव अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ECS मैंडेट टू अ बैंक यूजिंग अ म्यूचुअल फंड कि एवरी मंथ दिस अमाउंट ऑफ मनी शुड गेट इन्वेस्टेड इनटू एन इक्विटी म्यूचुअल फंड और अ फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड, और थोड़ा बहुत गोल्ड विद SIP कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या होता है, एंड लेट मी शो यू SIP का सक्सेस फॉर्मूला कहां पे आता है। लेट्स से कि आप 30 साल के हो, इमेजिनरी आप 30 साल के हो और आप एक छोटी सी 5,000 रुपए की SIP करते हो, ओनली 5,000 रुपीज। इफ यू गेट 12% रिटर्न एट द एज ऑफ 60 व्हेन यू रिटायर, समटाइम्स वी थिंक ना ये 6 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी ये 5,000 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, दैट 5,000 रुपीज SIP after 30 years at 12% return can make 1.52 crores 12% पे। और आप बोलोगे वाओ इतना पैसा बन सकता है। पता है ये पैसा क्यों बना, बिकॉज आपने 30 साल दिए। पैसा पैसे को बढ़ाता है, बिकॉज बूंद बूंद से एक सागर बन जाता है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ SIP। इसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। अगर 1 रुपए को आप डबल करो ना एवरी डे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 34, 64, 128, 1 to 64 आने में 6 साल लग गए, 64 to 128 होने में सिर्फ 1 साल लगा। एंड दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पैसे पैसे को बढ़ाया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू क्रिएट वेल्थ इज टाइम। अगर आप वही इन्वेस्टर हो जो 30 साल के बदले 35 इयर्स में शुरू करते हैं, 5,000 रुपए की SIP शुरू करते हो 35 इयर्स पे, पता है आपका कॉर्पस कितना बनेगा, 50% लोअर बनेगा, 84 lakhs। कभी कभी हम सोचते हैं ना 5 साल से क्या फर्क पड़ता है, इतना ही फर्क पड़ता है कि आपकी इनकम जो आप कमा सकते हो रिटायरमेंट में वो 50% कम हो जाएगी, और वही आप 40 साल के बाद करो तो 70% कम हो जाएगी, 45 lakhs। So the hero in the entire story is time, वक्त। वक्त is the biggest hero in the entire story। आप right financial planning कीजिए, और जितना लंबे से लंबे वक्त दे सकते हो अपने पोर्टफोलियो को, that's how you create wealth in financial planning. Now I'll talk about certain mistakes what generally people do. Okay, the first mistake unfortunately people do is कि दुनिया लोग क्या कर रहे हैं। देखो पैसा, मैं आपको इसके लिए एक सिंपल उदाहरण देता हूं। एक छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसे बोलते हैं मार्शमेलो टेस्ट। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन इन 1980s। छोटे बच्चों को एक छोटी मीठी चीज दी गई थी, उसको मार्शमेलो बोलते हैं। उन्हें बोला गया था एक बहुत सिंपल चीज,
या आप 15 मिनट वेट करो, आपको 2 मार्शमेलो मिलेगी, या आप वेट मत करो, यू जस्ट हैव इट. आई एम श्योर एवरीबडी वुड से, एज पेरेंट्स यू विल सजेस्ट कि बच्चों 15 मिनट वेट कर लो, आपको 2 मार्शमेलो मिल जाएगी, 2 मीठी चीज खा लेना. बट डेटा ये दिखाता है 70% बच्चे नहीं अपने को कंट्रोल कर पाते, उसी वक्त मार्शमेलो खा लेते हैं, वो 15 मिनट भी नहीं रुक पाते. मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज क्या होता है, हमारे पे सोशल प्रेशर बहुत होता है, और मोर इन नॉर्थ, बिकॉज आइडली आई बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड टैगोर गार्डन इन दिल्ली, एंड आई नो प्रीतमपुरा बिकॉज माय सिस्टर इन लॉ स्टेज ओवर देयर. दिल्ली में पड़ोसी लोग क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, इन जनरल सोसाइटी क्या कर रही है, और उसको भी ऐड करके सोशल मीडिया भी आ गई है, फेसबुक भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, दुनिया क्या कर रही है, उससे हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं. हमें पता है पैसा जोड़ने से पैसा बन जाता है, बट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर अनफॉर्चुनेटली वी ऑल्सो गो इनटू दैट स्पेंडिंग ट्रैप. द आइडिया इज, हमें लगता है हम बड़े हो गए, बट टेक्निकली हम दिमाग से वही बच्चे हैं जो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अभी वो चॉकलेट खा लूं या 15 मिनट वेट कर लूं. ओके, और दिल यही करता है कि अभी खा लेता हूं, कल का देखा जाएगा. एंड दैट्स व्हाई majority of the people are not able to save and invest sufficiently for their long term future. Second thing is कि ये दुनिया में जब से WhatsApp आया है और ज्यादा बढ़ गया है, इतनी नॉइज, इतना इंफॉर्मेशन, मीडिया, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, जो आपको 24 घंटे इतनी न्यूज देते हैं कि आप लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं पाते. मैंने आपको यही बोला कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो 20, 30, 40 साल के हिसाब से, पर मार्केट की इतनी न्यूज आपको रोज आएगी, आज मार्केट बढ़ गई, आज गिर गई, कोविड आ गया, वैक्सीन आ गई, ये आ गया, वो आ गया, कि आप मार्केट किसी ने बोल दिया महंगी हो गई, सस्ती हो गई, महंगी हो गई, सस्ती हो गई. उस चक्कर में you will always take wrong things for your portfolio. I know the biggest wealth creation has been by Indian women, and the reason why they have created wealth is because जब वो गोल्ड खरीदते थे, 1 second, जब वो गोल्ड खरीदते थे उनका लॉजिक बहुत सिंपल था. Just 1 second. Just 1 second. The idea is that जब वो गोल्ड खरीदते थे, वो सिर्फ गोल्ड खरीद के रख लेते थे हमेशा उसको. The idea is that's how you should do financial planning. With this, I would just tell a simple message कि all you have to do is define your goals, do right financial planning using mutual funds. थोड़ा equity में डालिए, थोड़ा FD fixed income में डालिए, थोड़ा gold में डालिए. Goal based planning कीजिए, अपने advisor के साथ जुड़िए, planner के साथ जुड़िए. मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है, इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, और एक अच्छे एडवाइजर, प्लानर के साथ राइट प्रिंसिपल समझने की कोशिश कीजिए, और अपने फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ काम कीजिए. With this, I'll end the session, Indu ji, and I'm happy to take questions if in case there are any. Thank you. Thank you so much, Amit ji. It was a wonderful session, and very nice. Like everybody, I think so. People would have got a lot of insight into why they should invest. And before asking Vikas ji to start the session, I would like a few of our Jito members who haven't introduced about themselves to please introduce themselves. Naveen ji, if you could introduce yourself, what you do, and after him Rahul ji, and who all members who haven't introduced. And I would request everybody to please put their business and their contact details in the chat box so that we can connect with them after the session, because JBN is about networking. So we would definitely like to network with each other. Naveen, please introduce about what you do. Good evening, good afternoon once again, everybody. I'm Naveen Dugar, Chief Secretary for North Delhi Chapter. First of all, I would like to thank Amit for his lovely insight. I was listening to you throughout your the information which you provided, the details which you provided. Your experience and your knowledge about stock market is commendable. Your voice is breaking, Naveen ji. We're not able to make out. Totally amazing to hear you out, sir. Thank you so much. So about me, I am into auto, and we import and export our product. Can you hear me?
Yeah, now we can. I think I am going through a bad signal area. So probably we can ask the next gentleman to introduce himself, Introduce and I yourself. can catch up again maybe later. You introduce yourself quickly. We can hear you now. Yeah, so basically I'm into automobile spare part business for the last 25 years. And we import and export automobile spare parts, and we distribute them across India. Thank you. Thank you so much, Naveenji. Rahulji, please, I would like you to introduce about yourself. Yeah, thank you for giving this opportunity. First of all, I would like to really thank Mr. Amit that he has spared his time, valuable time, that too on Sunday, which is very most precious time for the family, and he has spared his time. And his insights are really magical, because he is giving us pearls of wisdom that how we can invest and how we can create passive income and also empower ourselves. Now about myself. So I'm a founder director of EdTech company known as BizWiz Learning. We help in making good people better. In turn, we help in improving their profitability and productivity of the organizations and institutions. So we have got a lot of courses on our platform. So I want to take this opportunity to give free course on financial intelligence to all the members present here. I'll be sharing the link on the chat box. So thank you. Happy networking. And my gifts are, I will just also give my gifts. My gifts are Bikaner Wala, Subros, Global Auto, and Siemens. Then I am Bangalore, Pearl Academy. If those who want to connect with these companies and organizations, I'll be happy to connect them. Thank you. Thank you, Rahulji. That was very nice. Your gifts are amazing. A lot of people would like to connect with you. And anybody, any Jito member who has left, who would like to introduce themselves? Any Jito member? So we don't have anybody else left for introduction. So over to Vikasji. Thank you, Vikasji. Please start the session. Thank you. Good morning, everyone. Jai Jinendra. So, Indu, can you see the screen? Yes, I can. Yeah. Let me just start this. So, as Amitji has shared his wisdom, and which I perfectly second his thought process in terms of creating wealth. You have to have patience over a period of time, and a diversified approach is the motto to create wealth. So after creation of wealth, what comes? The protection of wealth and retrieval of wealth. Investment करने के बाद उसको protect करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना investment करना होता है. So as Amitji was saying, over a period of time, stock market can give you exponential return provided you have patience. So just taking his words with a small example, if somebody who has invested 100 shares of Wipro in 1970s and 80s, उसकी आज के दिन में net worth 750 crore है. मतलब this is beyond anybody's imagination, the kind of return equity market can give, provided we identify stock and हम उसको hold करके रख सकते हैं. ऐसी story काफी है Nifty 50 stocks में. Cipla 10,000 रुपए का Cipla 100 crore है. 10,000 रुपए का Infosys is also more than 150 crores. So what is more important? हम लोग investment करते हैं. करने के बाद obviously wait करते हैं, and पुराने जमाने में जो investment होते थे, most of our fathers and forefathers, they used to hold this investment in physical papers. भले वो mutual fund हो, भले वो insurance के papers हो, shares हो, largely वो physical form में ही रहते थे. Over a period of time वो physical से demat में हो गए, but अभी भी काफी बड़ा magnitude है जो अभी भी physical papers में पड़ा हुआ है. Just to give an example, last month, रांची से भी 15 किलोमीटर दूर एक गांव में एक लेडी के फादर ने 1970s में कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे. 30 साल के बाद बेटी की शादी हो गई एंड फादर एक्सपायर्ड. बेटी जब अपने पीयर में गई तो उसको काफी कुछ पेपर्स मिले.
she didn't knew anything ABC of investment. So somehow she approached us. Help her जो उनके तो 4-5 हजार रुपए लगे. So over a period of time investment grow होता है, but what is more important कि आप उस investment को obviously संभाल के रखते हैं, पेपर आप संभाल के रखते हैं, फैमिली में सबको पता रहना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है. So here comes the topic, जब अपन बात करते हैं Yeah, Vikas, you're back. Your screen is not there anymore. Is it there? I think so. There is icon is moving. Let me just get back. I'll just tell you. Yeah, it is there now. Yeah. So I don't know where I got disconnected. So wealth protection की जब अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ा question, हम लोग अभी 20-25 लोग हैं. So I want a very honest opinion in the chat box, that if I ask you that, is our family member aware about our investment detail on a real time basis? मैं अगर पूछता हूँ कि अपने परिवार के सारे जो member हैं, or anybody in our family, if I'll ask you, are they aware about 100% detail of our investment on a real time basis? कि मेरे पास कितने बैंक अकाउंट है, कहाँ इंश्योरेंस ले रखी है, प्रॉपर्टी में कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कहाँ में पार्टनरशिप फर्म है, कहाँ क्या है. So how many are we actually keeping our family aware about the investment detail? So if I get some of the answer in the chat box, so that will help me to understand the perspective. So that is something we should ask ourselves, that are we complacent in protecting our wealth? Family में तो अपने आप को पूछें कि हम लोग किसके लिए कमा रहे हैं. As Amit was saying, we wish to have a dream home someday. We want to create wealth for our family. सुबह से लेके शाम तक हम लोग मेहनत करते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं, बट हम अपने आप को ये पूछें कि हम किसके लिए कमा रहे हैं. अल्टीमेटली हम अपने फैमिली के लिए कमा रहे हैं. वी विश टू हैव अ ड्रीम होम समडे. इतना कुछ होने के बाद अगर अपने आप को ये पूछे that God forbid if something happens to us, so have we ensured that our entire wealth falls at the right place? हमारे जो लीगल एयर है उनको वो वेल्थ की जानकारी पूरी मिल सके. लाइफ कंप्लीट अनसर्टेन है, एंड कोविड ने हमें सबको ये दिखा दिया है कि लाइफ की सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है. देयर कैन बी ओल्ड एज ऑल्सो, ऑब्वियसली हम सब बूढ़े भी होंगे. देयर कैन बी नेचुरल कैलेमिटीज ऑल्सो, डिसेबिलिटी भी हो सकती है. सो लाइफ तो कंप्लीटली अनसर्टेन है, किसी को कुछ पता नहीं है कि नेक्स्ट सेकंड क्या होगा. तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी कमाई हुई संपत्ति को भी अपन एक लॉजिकल वे में, भले उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई प्रॉपर वे में फैमिली में किसी को पता हो, ये चीज करना काफी जरूरी है. सो व्हाट शुड वी डू? सो सम ऑफ द थिंग्स, जैसे फैमिली मेंबर नीड टू मेक अवेयर अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिटेल. हमारी फैमिली में कोई ऐसा होना चाहिए जिसको हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे वेल्थ के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो ऑन ए रियल टाइम बेसिस. When we did a primary research, you'll be surprised to know more than 95% of the people, whether it's a good financial planner also, they say that, probably in my family, nobody is aware about 100% detail of my investment on a real time basis. Scattered में पता रहता है, कुछ वाइफ को पता रहता है, कुछ भाई को पता रहता है, कुछ पापा को पता रहता है, but very unstructured. So that is not a right way. फैमिली में किसी एक को completely real time basis में अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी होना जरूरी है. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि
ऐसा क्या करें जिसमें हमें हमारी फैमिली को वो कंप्लीट जानकारी रहे। सेकेंड पार्ट, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी होना बहुत जरूरी है। अपन बहुत कॉम्प्लेसेंट रहते हैं कि अकाउंट्स में नॉमिनी है नहीं है, बाद में हम नॉमिनी बना देंगे, बट दिस इज समथिंग कि हम अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो अल्टीमेटली वो जो मेहनत की कमाई है वो अगर हमारी फैमिली को नहीं मिले तो उस वेल्थ क्रिएशन का भी कोई मतलब नहीं है। सो नॉमिनी होना भी काफी जरूरी है। एंड थर्ड है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जानकारी है उसको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम उसको मेंटेन करें। एंड ये सबसे बड़ी बात है, नॉमिनी तो होना तो बहुत जरूरी है, बट काफी लोगों को ये एक गलत फहमी है कि नॉमिनी बनाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये भी एक मिसनोमर है। नॉमिनी इज जस्ट एक्टिंग एज ए केयर टेकर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली मिलेगा तो वो लीगल एयर को ही है। मैं अपने बैंक अकाउंट में आई कैन मेक वन ऑफ माई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एज ए नॉमिनी, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही विल बिकम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। सो अल्टीमेटली नॉमिनी के बाद ये इंश्योर करना है कि फैमिली में अगर मल्टीपल लीगल एयर है तो उनको कैसे अपनी वेल्थ मिले। तो इसीलिए लोग विल और सक्सेशन प्लानिंग करते हैं। अलावा क्वेश्चन आता है कि हम अपने फैमिली को कैसे बताएं, इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे बताएं। अलग अलग जगह स्कैटर्ड वे में रहता है इन्वेस्टमेंट। सो आजकल काफी प्रकार के डिजिटल वॉलेट्स आ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी डिजिटल वॉलेट्स है जहां आप ब्रीफली अपनी इन्वेस्टमेंट की जानकारी मेंटेन कर सकते हैं। या सपोज शेयर समाधान में हमने एक डिजिटल रिपोजिटरी लॉन्च किया है जिसमें आप अपने फैमिली की अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी आप ब्रीफली मेंटेन कर सकते हैं और वेरी लो कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन आप मेंटेन करें। मेंटेन करने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो भी मेंटेन करते हैं, परिवार में 2 लोगों को उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक भले है तो अपने वाइफ को अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी दे, और उसके अलावा एक ऐसा पर्सन हु डज नॉट स्टे विथ द पर्सन अंडर द सेम रूफ, भले वो दूर का फ्रेंड हो या कोई भाई हो जो उनके साथ नहीं रहता है, बिकॉज हस्बैंड की इंफॉर्मेशन सिर्फ वाइफ को ही पता रहना इज अगेन नॉट 100% प्रोटेक्शन ऑफ योर वेल्थ। क्योंकि कल को हस्बैंड वाइफ को कुछ हो जाए या घर में जो पेपर्स है वो गुम गए, इट कैन हैपन दैट देयर कैन बी फायर एट होम, बर्गलरी एट होम। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट देयर हैज टू बी अ थर्ड पर्सन apart from husband wife who should be at least aware about some on a macro basis कि उसके कितने इन्वेस्टमेंट है। सो मेरे केस में सपोज I'll just take 2 minutes to just show you how you can maintain this kind of investment detail even on a electronic media basis जहां आप briefly maintain कर सकते हैं। क्योंकि घर में आप फिजिकल पेपर में भी कुछ मेंटेन करते हैं तो ये काफी पॉसिबिलिटी होती है कि घर में अगर पेपर गुम जाए तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। सो उसको आप ऑनलाइन मैकेनिज्म, जैसे मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट दिखाता हूं, जैसे ये वेल्थ समाधान है जो डिजिटल वॉलेट के हिसाब से यूज करता है। तो इसमें मैं अपना मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूं कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। बिकॉज इसमें हम सजेस्ट करते हैं किसी को भी कि आप अपने हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप मेंटेन मत करो, बट एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप अगर फैमिली के लिए अगर ऐसे मेंटेन करेंगे, नॉट नेसेसरली कि आप वेल्थ समाधान कार्ड में ही मेंटेन करो, बट ये किसी हिसाब से कैसे मेंटेन करना चाहिए मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट जरूरी नहीं है। मेरे घर में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, माय वाइफ is not interested to know my investment detail on a real time basis. So because यहाँ की स्टोरी होती है कि आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं बट घर वाले इंटरेस्ट लेते नहीं है। तो मैंने ये वेल्थ समाधान कार्ड में अपना लॉगिन बनाया जिसमें मेरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, और ये जो मैंने नेक्स्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जहाँ ब्रीफली आप मेंटेन करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल ऑन ए नो नेम बेसिस। मतलब आपको बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आप कैसे मेंटेन करते हो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ। लेट दिस ओपन।
तो इसमें मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की सारी जानकारी एक ब्रीफ वे में मेंटेन की है, और वो मैंने कैसे की है, सपोज अगर बैंक अकाउंट है, सो मेरे इन्वेस्टमेंट को सेग्रीगेट कर रखा है कि मेरे बैंक अकाउंट कितने हैं, मेरे इंश्योरेंस में कहाँ कर रखा है, प्रॉपर्टी में कहाँ कर रखा है, अगर मैंने प्राइवेट कंपनी में कुछ स्टेक ले रखा है तो किन किन प्राइवेट कंपनी में ले रखा है, इस हिसाब से इसमें मैंने ये इंफॉर्मेशन इसमें डाल रखी है। इस इंफॉर्मेशन को डालने के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, इस वेल्थ समाधान रिपोजिटरी सिस्टम में मैंने 2 फैमिली का इमरजेंसी so हेलो, सो मेंटेन करने के बाद आप अपने फैमिली के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आप उसमें शेयर कर सकते हैं, एंड इन केस ऑफ एनी कंटिंजेंसी माय फैमिली कैन रीच आउट टू द प्लेस वेयर दोज इंफॉर्मेशन हैज बीन मेंटेन। सपोज इस केस में अगर वेल्थ समाधान कार्ड होल्डर है, शी कैन रीच आउट टू वेल्थ समाधान एंड आस्किंग द डिटेल ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। सो कंप्लीटली एनक्रिप्टेड वे में है। तो इसके अलावा HDFC बैंक का भी डिजिटल वॉलेट है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रिजर्विंग द इंफॉर्मेशन इन ए लॉजिकल वे, जहां इन केस ऑफ एनी कंटिंजेंसी आप उसको निकाल सकते हो, एंड उसके बाद अगर कुछ घटना घट जाती है तो आपको एटलीस्ट उसको निकालने में तकलीफ ना हो, आपको दर दर के ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये होने के बाद अगर वेल्थ रिट्रीवल की अगर अपन बात करते हैं कि मान लो कि किसी भी रीजन से अगर फैमिली से शेयर नहीं किए, सो मैं आपको जस्ट एक डेटा दिखा रहा हूं कि इस कंट्री में कम से कम 5 से 10 लाख करोड़ के ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो करके फैमिली या तो फैमिली को पता नहीं है, भूल गए हैं, वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। 3 लाख करोड़ के फिजिकल शेयर्स पड़े हुए हैं जो किसी की फैमिली को पता नहीं है। इंश्योरेंस की बात करें तो 15,000 करोड़ का इंश्योरेंस ऐसा है जहां 100% प्रीमियम पे कर चुके हैं, इंश्योरेंस को कोई क्लेम करने वाला नहीं है। सो ये इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि फैमिली में हम अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी कंप्लीटली दे नहीं पाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता किसी भी रीजन से किसी की फैमिली में कुछ हो जाता है तो काफी जैसे ऐसी चीजें अनक्लेम्ड रह जाती है, वो इंश्योरेंस हो, वो पुराने शेयर हो, बैंकों में लोग करके भूल जाते हैं, तो रिकवरी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फैमिली मेंबर। अब आप ये देखिए कि कितना हैसल्स होता है एक फैमिली के लिए जब उसके इन्वेस्टमेंट अगर निकालने में तकलीफ होती है। रेगुलेटर्स में उसको MCA में जाना पड़ता है, अगर बैंक्स है तो बैंक अगर नहीं मानता है तो आप रिजर्व बैंक में आपको अप्रोच करनी पड़ती है, सेबी है, NCLT है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करेंगे, कोस्ट अकाउंटेंट से बात करेंगे, तो दर दर की ठोकर खानी पड़ती है फैमिली को। तो अल्टीमेटली क्रक्स ऑफ द मैटर व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट बिफोर आई कंक्लूड दिस सेशन कि इन्वेस्टमेंट करना तो ऑब्वियसली हर लोग अपने कमाई का कुछ एक परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, बट सब कुछ क्रिएट करने के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे फैमिली में या फैमिली के अलावा किसी एक को आपके इन्वेस्टमेंट की कंप्लीट जानकारी हो। नहीं तो क्या होगा कि फैमिली को तो तकलीफ होगी, एंड जो आज 5 से 10 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है जो सरकार को ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए हैं, आने वाले टाइम में जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, मम्मी पापा लोग अलग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ को अपनी इंफॉर्मेशन पूरी बताता नहीं है, तो वो सिनारियो में अल्टीमेटली जो सफरर होते हैं वो परिवार के
लोग ही होते हैं। तो ऑप्शंस अपने पास है कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसा कुछ क्रिएट करें सो दैट आपके सारे इन्वेस्टमेंट की जानकारी परिवार में किसी को पता हो, या जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है जैसे मैंने आपको दिखाया फेल समाधान कार्ड, जहां आप ब्रीफली अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी एनक्रिप्टेड वे में आप मेंटेन कर सकते हो। तो वो जो जानकारी आप मेंटेन करते हैं उसका एक्सेस आपके अलावा इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। इवन विद शेयर समाधान ऑल्सो we do not have access to that digital repository system, but what is more important कि आप ऐसे डिजिटल वॉलेट में अपने प्रॉपर्टी या अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी आप ब्रीफली मेंटेन कर रहे हैं और कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह है, तो उन इंफॉर्मेशन को निकालने में आपको सहायता मिलती है। सो with that I would like to conclude that हम लोग को कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए अपने वेल्थ के बाद। लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। I started also this particular venture out of accident only. I lost my brother in road accident 10 years back, and when I lost him we had a tough time first to identify his investment and then to retrieve his investments. So भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, बट लाइफ की कंटिजेंसी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, मेडिक्लेम लेते हैं हेल्थ इमरजेंसी के लिए, वैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि आप अपने वेल्थ की इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं रखें, एंड फैमिली कैन ऑल्सो एक्सेस इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसीज। With that, thank you so much, Indu ji, Deepak ji, and the entire team of North Delhi JBN for giving me an opportunity to interact with all of you. And if you have any query, I'll be happy to answer. Thank you so much, Vikas ji. And we can take a few questions if anybody has any question with Vikas ji or Amit ji. Anybody would like to ask any question, if we have Amit ji also there and Vikas ji, please unmute yourself, or if you could tell me anybody who would like to ask any question, they can please raise their hand if anybody is interested to ask any question. I think Prem ji wants to ask. Yes. Prem ji. Hanji. I'm audible? Yes, you are, please. Okay. My question is to Mr. Amit Gawar first. He has not, I'm 75, he has not told about the equity trading, nor about the global investment. So if he knows something about it, can he highlight, can he give me some information? Okay. First of all, sir, I think personally, okay, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। एज एट योर एज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको इक्विटी कितना होना चाहिए आपके पास, और इंडिया में और फिक्स्ड इनकम कितना होना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जब मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ, इक्विटीज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटी सिर्फ इंडिया में है। इनफैक्ट इंडिया इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। टुडे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज एक्चुअली हम यूज करते हैं। जैसे आपके पास श्योर एप्पल का फोन होगा, या आप गूगल रोज यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो। इनफैक्ट ये सेशन जूम पे हो रहा है। जितनी भी हम बाहर की चीजें हैं हम यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कंपनीज इंडिया में, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पे भी हैं, तो कुछ पैसा इंटरनेशनल बाजार में भी लगाया जा सकता है। देयर आर फंड्स, जैसे डीएसपी का एक फंड है, डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल फंड, जो यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर्स इनफैक्ट आजकल थोड़े अवेयर हो रहे हैं। पहले वो सिर्फ इंडियन कंपनीज में ही, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते थे। आज हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ पीपल ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड पीपल हैविंग गुड अवेयरनेस एंड नॉलेज, वो थोड़ा सा पैसा इंटरनेशनल मार्केट में भी म्यूचुअल फंड्स के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। Personally, sir, I am not a very big fan of people trading money. I'll tell you why. जो भी कोई स्टॉक में आप निवेश करते हो, ऑनेस्टली बहुत रिसर्च लगती है। सिर्फ कंपनी का नाम पता होना काफी नहीं होता। एक फंड मैनेजर उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ता है, उसकी मैनेजमेंट देखता है, ऑडिटर्स देखता है, कैश फ्लो देखता है,
उनके सप्लायर से मिलता है, कस्टमर से मिलता है, उनकी वैल्यूएशन करता है, सेक्टर पे एनालिसिस करता है, और बहुत सोच विचार के बाद, इनफैक्ट उनको क्लोजली मॉनिटर करने के बाद एक डिसीजन लेता है। हम जब ट्रेडिंग करते हैं हम एक्चुअली कुछ भी नहीं करते। मैं ऐसे लोग जानता हूं जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदा, कंपनी के बारे में 2 मिनट बात नहीं कर सकते, उन्हें ये नहीं पता बोर्ड मेंबर्स कौन है, मैनेजमेंट में कौन है। वो बोलते हैं कि जियो आने वाला है, मैं उनको बोलता हूँ जियो आने वाला है, उसमें 5G, बोलता है 5G आएगा। मैंने बोला 5G कब आएगा और 5G होता क्या है, उसके बारे में 2 मिनट बताइए। वो भी बता नहीं पाते 5G क्या होता है, 4G क्या होता है। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप खुद सोचो कि आप बिजनेसमैन हो, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? ऑनेस्टली नहीं। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में डालना सबसे सही तरीका है। सर कितना इक्विटी में डालना है, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मेरी मदर 60 इयर्स की हैं एंड उनका एलोकेशन, मतलब ऑब्वियसली माय फादर इज नॉट देयर, हम 2 भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया है, मॉम के साथ डिस्कस करके हमने 35-40% इक्विटी में रखा है और बाकी 60% हमने डेट में रखा हुआ है। एंड वी फील उस पोर्टफोलियो के साथ शी विल बी एबल टू मैनेज हर एंटायर रिटायरमेंट वेरी पीसफुली। उसके अलावा भी उनके पास काफी पैसा रहेगा। द आइडिया इज क्या एलोकेशन होना चाहिए? सर मैं आपको जानता नहीं हूं, आपकी पूंजी को जानता नहीं हूं, आपके रिस्क एपेटाइट को नहीं जानता, और आपका स्वभाव क्या है वो भी नहीं जानता मैं। सो आप अपने प्लानर के साथ बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए राइट एलोकेशन क्या है। सर देखो, पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल। हमारा ऑब्जेक्टिव कोई रेस नहीं जीतने का है, हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे गोल्स के तरफ, हम चाहते कितना है पैसा और हम अपना लाइफ किस तरीके से जिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैंने देखा है लोग ना कभी कभी रिटर्न्स में इतना पड़ जाते हैं कि लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। उतना रिस्क लीजिए और उस तरीके से पोर्टफोलियो बनाइए जो आपके स्वभाव और आपके गोल्स के हिसाब से बना हो। Thank you. Thank you, Amit. That was really good. And another question for Mr. Vikas Jain. Yeah, Vikas. Yes, sir. विकास जी, आपने डिजिटल के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। आप सब पढ़े लिखे हैं, कर सकते हैं। देयर आर सम अपने जैन फैमिली में कम्युनिटी में है जो डिजिटली नहीं करना चाहते। तो आई विल शेयर वन परफॉर्मेंस वाइज विद यू। आई हैव गॉट अ परफॉर्मेंस वाइज, माय फैमिली शुड नो एंड आई हैव रिटन माई सेल्फ। सब मैंने कंप्यूटर में एक प्रिंट आउट निकाला हुआ है, तो मैं आपके साथ नहीं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें मेरे पास सिप कितने हैं, फिक्स डिपॉजिट कितना है, इक्विटी में मैंने कितना लगाया है, म्यूचुअल फंड कितने हैं, डेट में गोल्ड भी मैं शेयर, मतलब गोल्ड भी पहले गोल्ड फिजिकली बाय करता था, अब नहीं, अब इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। तो मेरा जो है इंटरेस्ट जो है, अब मैंने अपना अमित से बात की थी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का जो मैंने अभी तक जानकारी ली है वो ये है कि इंडिया में $250,000 पर 1 ईयर आप आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक सिंगल डे में नॉट एक्सीडिंग 7 लाख। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इजी नाउ विद ICICI बैंक, HDFC बैंक। आप अपने जो ट्रेडिंग करते हो उसमें ग्लोबल इन्वेस्ट लिखा होता है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का फॉर्म भरा और जितना पैसा इन्वेस्ट करना किया, और 3 दिन के बाद आपको कंफर्मेशन आ जाती है। तो जो बाहर की कंपनी, अभी बाइडेन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ जाएगा, जो बाहर की कंपनियां हैं जैसे एप्पल है, अमेजन है, टेस्ला है, फेसबुक, गूगल, इन सब के शेयर जो है ना जी बढ़ेंगे। पहले भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी बिलियनर हो गए हैं। तो मेरा मतलब इनसे पूछने का था कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के बारे में मतलब पूरी नॉलेज दे। मेरे को पूरी नहीं है इसलिए मैंने पूछा था। तो एनीवे विकास जी, आई विल शेयर द परफॉर्मेंस विच माय फैमिली, my son and my wife know, even my daughter knows about it, what I have invested, where I have invested. मैंने तो बल्कि अपनी चेकबुक पे 2-2 साइन करके रख दिए हुए हैं, कल को मेरे बाद उनको जरूरत पड़े तो इजीली मतलब वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। So thank you so much. Okay. I think that's so nice, Prem ji. It's not about digital wallet. अगर आपने घर पे मेंटेन कर रखा है, so the point, limited point, what I wanted to say कि फैमिली को पता रहना चाहिए, दैट्स द क्रक्स मैटर। बट मोस्टली 90% फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है वो अपने इन्वेस्टमेंट की 100% जानकारी रियल टाइम बेसिस पे अपने फैमिली को दे नहीं पाता है, एंड दैट इज द रीजन द कंट्री इज सिटिंग एट क्लोज टू 10 to 15 lakh crore वर्थ ऑफ अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट। एंड स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, हस्बैंड वाइफ से शेयर नहीं करता, फादर सन से शेयर नहीं करता। तो आई थिंक आप शेयर नहीं
करोगे तो अल्टीमेटली इट विल गो टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैकेनिज्म आप कुछ भी करें, जैसे आप घर पे मेंटेन कर रहे हैं, देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म एंड परिवार को पता रहना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Thank you. Thank you. Thank you. Now I would like Naveen ji would want to ask a question. Naveen ji, please go ahead. Yeah, my question is to Amit ji. तो अमित जी, निफ्टी इंडेक्स both are at the peak. तो मार्केट में ये ऑलमोस्ट 12,000 के लेवल से, निफ्टी के लेवल से ये एक यूफोरिया बना हुआ है। ये मतलब एवरी टाइम देयर आर स्पैम मैसेजेस कि मार्केट 7,000 निफ्टी हो जाएगी, 8,000 निफ्टी हो जाएगी। तो आई एम इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म। हमारे जो आज के मॉडरेटर है दीपक जी, वो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ। तो उन्होंने मेरी 10-12 साल पहले कुछ SIPs और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंसेस, सब चीजें करवाई थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि आज वो अपने आप एक वेल्थ क्रिएशन हुई है उसके अंदर। एंड आई हैव सीन द इफेक्ट ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू कीप द स्टॉक। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो आई ऑलमोस्ट माय जर्नी स्टार्टेड एट द सेम टाइम, अराउंड 2008-9। तो मैंने वो अप्स डाउन्स, वो 3-4 साल के डल पीरियड, नो रिटर्न, सब कुछ देखा है। एंड टुडे व्हेन आई लुक बैक एट दोज इन्वेस्टमेंट without any effort, without even looking at them, some I have multiplied by 7 times, some I multiplied by 8 times, 10 times even, depending upon the scheme which I had. And some were dividend payout schemes, so I have been receiving very nice dividend also. But when I come to stock market, I don't like to stick to stock, shares for a very, very long period. So we have a group of friends. Deepak ji is also a part of our think tank. So we research on some stocks and then we buy them, and we have a fixed target in mind कि 20%, 30% का return आएगा, से 40% भी आ जाता है कभी-कभी। तो we usually like to exit. तो अब ये जो सिनेरियो बना हुआ है मार्केट के अंदर कि भाई आज बबल बर्स्ट होगा, ये तो एक लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट है और कभी भी मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज योर एडवाइस, व्हाट इज योर ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड्स द मार्केट की क्या स्टेबिलिटी लगती है? एंड फॉर इन्वेस्टर्स लाइक मी जो कि अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो प्योरली म्यूचुअल फंड में बना के बैठे हुए हैं, और शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक मार्केट जस्ट एक सॉर्ट ऑफ ठीक है स्पेकुलेशन का शॉक समझ लो, या एक एक्सपीरियंस हो गया 10-12 साल से करते करते, तो लगता है कि ठीक है हम अपने लेवल पे भी कुछ करते रहें। हमारे जैसे लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? श्योर। सो लेट मी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी किसी से पूछना नहीं चाहिए कि आपको क्या लगता है, या हमेशा लोगों से पूछना चाहिए कि आप क्या करते हो अपने पोर्टफोलियो के साथ। सेम चीज डॉक्टर से भी पूछना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए सर डॉक्टर कौन सी दवाई अच्छी है, उससे पूछना चाहिए डॉक्टर आप क्या खाते हो जब आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से आज चीजों को देखता हूँ। जो मेरा अनुभव रहा है 15 साल का, सबसे पहला अनुभव जो रहा है, जैसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, या 2020 में मैंने अभी मार्केट गिरते हुए देखी। जब मेन मार्केट गिरती है ना, तो किसी को बता के नहीं गिरती। वो साल कब आता है, वो साल कब गिरेगी मार्केट, दुनिया में सब कोशिश कर रहे हैं, बट मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि किसी को नहीं पता। ओके, दैट्स द ब्यूटी। दूसरी बात सर, इट इज वेरी नेचुरल कि डर बेचना सबसे आसान चीज है। होप अगर मैं आपको होप बेचूंगा ना, तो सेल्स पिच लगती है, और मैं डर बेचूंगा तो आपको लगेगा ये तो मेरे बंदा मेरे बारे में सोच रहा है। अगर आप देखोगे, अखबार उठाओगे, जैसे मेरे पास अखबार पड़ी है, और मैं अगर टीवी न्यूज ऑन करता हूँ, जी न्यूज, तो जितनी भी डर की न्यूज है, ओके, कि ये हो जाएगा, चाइना अटैक कर देगी तो ये हो जाएगा, हमारा देश बंद हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब डर बेचना सबसे आसान चीज होती है। and that's human nature, और इसमें कोई खराब आती है, हम as humans we are like that. The idea is yes, market थोड़ी overvalued हो गई है, no doubt about it, okay, और ये होता रहता है, कभी market थोड़ी overvalued हो जाती है, थोड़ी कभी undervalued हो जाती है, and you are right, liquidity driven rally है। liquidity का मतलब क्या होता है? जब पैसा प्रिंट बहुत होता है मार्केट में, तो टेक्निकली हर एक चीज ऊपर चली जाती है। एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, इंडिया में नहीं बट पूरे विश्व में हुई है, कि इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बहुत कम हो गए हैं। राइट। आप मतलब ये बोलते हैं 5000 सालों में इतिहास में जो रिटर्न हिस्ट्री है फाइनेंस को लेके, इतना लो ब्याज दर कभी किसी ने नहीं देखा।
मतलब आज ब्याज इतना सस्ता है कि दुनिया में 1/3 बॉन्ड्स एफडी इस तरीके से हैं कि अगर आप बैंक को पैसा देते हो 100 रुपया, तो आपको 1 साल बाद 100 रुपया नहीं मिलेगा, आपको 99 रुपीज मिलेंगे। मतलब आपको बैंक में रखने का आपका एक्चुअली घाटा हो रहा है। ये अलग दुनिया चल रही है जिसकी वजह से पैसा, जो एसेट्स है, जो बिजनेसेस है, उसमें पैसा जा रहा है। और ये पैसा सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, यूएस मार्केट, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सब मार्केट थोड़ी बढ़ गई है। बट द पॉइंट इज, थोड़ी ओवर वैल्यूएशन के वजह से क्या आपको पैसा निकाल लेना चाहिए पूरा पैसा इक्विटी मार्केट से? द आंसर इज नो। द आइडिया इज वेरी सिंपल। आपको पोर्टफोलियो जो रीबैलेंस करना होता है ना, हम वी आर इन द बिजनेस ऑफ पर्सनल फाइनेंस। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, जब आपको लगता है कि, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको 60 का एग्जांपल दिया, 60% इक्विटी रखता हूं, 30% फिक्स्ड इनकम और 10% गोल्ड। जब मार्केट गिर गई थी 2020 मार्च में, तो ऑब्वियसली मार्केट गिर गई तो मेरा इक्विटी एलोकेशन कम हो गया। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पैसा डेट से निकाल के इक्विटी में डाल दिया, सो दैट मेरा वो बैलेंस, संतुलन बना रहे। और जैसे अब मार्केट अभी और बढ़ गई है, मैंने ये देखा कि मेरा इक्विटी एलोकेशन 70-75 और मेरा डेट कम हो गया। मैंने वापस थोड़ा पैसा इक्विटी से निकाल के वापस पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर दिया। आज मेरा पोर्टफोलियो वापस 60% इक्विटी है, 30% डेट है और 10% गोल्ड है। जैसे सर आपको डर लगा हुआ है मार्केट गिरने का, मुझे भी लगा हुआ है। मैंने अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन अपनी वाइफ को दिखाया, बोला कि ये वैल्यू हमारी पूंजी बन गई है। तो शी सेड अच्छी बन गई है। वो तो अपना पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 15 साल से उन्होंने नहीं देखा, तो उनकी एसआईपी की तो अच्छे वैल्यू बन गए। तो बोलती है तो अच्छे पैसे बन गए। मैंने बोला अब देख लिया पैसे, अब इसको अज्यूम करिए पैसा 20% से गिर गया, ओके, उसकी वैल्यू क्या बनती है? बोलती पर क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं, बोला कि ये 20% मार्केट जब गिरती है ना, उसके लिए माइंड हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो समझो ये आपकी पूंजी है, 20% से माइनस कर लो, ये आपकी पूंजी है, अब सोचो आगे से। Thank you. Fair point. Well understood. Thank you. Fine, sir. I hope you got your answer, Naveen ji. Deepak ji also Yes, wants to absolutely. ask a question. Deepak ji. My question is for Amit ji. Amit ji, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जो पोर्टफोलियो एलोकेशन हम गोल्ड में करते हैं, कैन वी गो थ्रू योर डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड फॉर गोल्ड एलोकेशन, और शैल वी गो फॉर गोल्ड ईटीएस और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? देखो सर, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एक है फिजिकल, जो इंडियंस ट्रेडिशनली करते आए हैं, ज्वेलरी खरीद देते थे। आइडली मैं सबको रिकमेंड करूंगा वो मत करो। आई टेल यू रीजन व्हाई। एक तो पहली बात तो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, उसमें मेकिंग चार्ज होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि आपको वो भी नहीं पता सोना सही है कि गलत है। जब आप खरीदते हो आपको वही ज्वेलर को बेचना पड़ता है। आज गोल्ड इतना महंगा हो गया है ना कि आप ज्वेलरी पहन के आप बाहर जा भी नहीं सकते। थेफ्ट का कॉस्ट होता है, स्टोरेज का कॉस्ट है और बहुत सारे डर लगा होता है। अगर आपको फिजिकल गोल्ड लेना ही है तो बार खरीद लो या बुलियन खरीद लो और रख लो फिजिकल, बट उसमें भी स्टोरेज का प्रॉब्लम आ जाता है। उससे बेटर ऑप्शन है, उसके अलावा फिजिकल थोड़ा बहुत ले लो, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्वेलरी भी रख लो अपने आप को खुश करने के लिए, फिजिकल भी रख लो। बट उससे बेटर ऑप्शन एक और, आई वुड से बेटर, एक और अच्छा ऑप्शन है फिजिकल के साथ, वो भी करो, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड खरीद लो। एडवांटेज क्या होता है इसमें, गोल्ड के रिटर्न टैक्स फ्री मिल जाते हैं। थोड़ा गोल्ड ईटीएफ में भी डालो, गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी डाल लो। गोल्ड ईटीएफ ट्रेडिंग के काम आ जाता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी और लमसम के थ्रू आप लंबे समय के लिए गोल्ड जमा कर सकते हो। हमारा जो गोल्ड वर्ल्ड गोल्ड फंड है ना, वो एक्चुअली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता, वो गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये सारी माइनिंग कंपनी विश्व में है। एडवांटेज क्या होता है, जब ये फंड अच्छा करता है ना, तो बहुत अच्छा करता है, बिकॉज जब गोल्ड के भाव बढ़ रहे होते हैं तो ये कंपनी बहुत प्रॉफिट बनाती है, और जब गोल्ड के भाव गिरते हैं ना तो ये कंपनी नुकसान भी अच्छा करती है। तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी है, बिकॉज ये सारी की सारी अच्छी गोल्ड माइनिंग कंपनीज जो दुनिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, थोड़ा बहुत लैटिन अमेरिका में, उन कंपनियों में निवेश करता है। तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड है। मैं कहूंगा कि अगर कोई बंदा गोल्ड में निवेश कर रहा है 50 रुपए, या सॉरी 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें मे बी 5% या 10% कर सकता है, उससे ज्यादा मत करो। ओके, थैंक यू। बट ओनली रिस्क जानने के बाद, इट इज ओनली फॉर हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टर। ये सब लोग के बस की बात नहीं है, बिकॉज देन द इन्वेस्टर बोलेंगे कि आपने तो ये एडवाइस किया, रिटर्न नहीं बन पाए। ठीक है, थैंक यू Thank you. Anybody else who would like to ask a question?
आई थिंक सो दीपक जी आप सबको थैंक यू दे दीजिए, उसके बाद मैं कहूंगी विनय जी आप भी एक बार थोड़ा सा, विनय जी प्लीज लास्ट क्लोजिंग नोट्स दे दीजिए आफ्टर दीपक स्पीक्स। दीपक जी प्लीज। यहाँ पर आए आज दोनों स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हम सबको इन सब बातों से अवगत कराया, पर्सनल फाइनेंस के वेरियस एस्पेक्ट से इतने पैशन और एंथुसियाज्म के साथ, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। अमित जी का एड्रेस स्ट्रेसिंग ऑन डिफाइनिंग गोल्स, importance of having long-term orientation with financial planning and of diversification in asset allocation has definitely added to our knowledge. Vikasji's talk about significance of going beyond just investing and paying attention to securing them as well has given us something to really think about. We should definitely do something so that our family member knows where we have invested the money. I'm sure everyone present here has taken back some great learning and considering their time to have been invested well. Thank you, speakers, for joining us and for your laudable efforts. And a big thanks to all the attendees for giving us the precious family time on Sunday. Thank you. Jito family, thank you all. Vinay ji, I would like you to please say a few words on for ending the program. Yeah. आप जा रही है मेरी सादर जय जिनेंद्र। मैं I love this platform, JBN platform. Earlier I was into this platform actively, but now also I want to join the programs of JBN in particular. और आज का प्रोग्राम जो मतलब जिनकी भी मेहनत रही है बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, and especially I will thank Amit ji and Vikas ji for their valuable insights. कई गलतियां शायद मैं भी कर रहा था जो मुझे भी लगा कि हाँ भाई अब ये चीजें चेंज करनी चाहिए, एंड थैंक्स टू ऑल। ओवर टू अंदु जी। Thank you, and let's end this wonderful program and thanks to Amit ji, Vikas ji and all the participants who could spare their time on this Sunday morning. I would like ask Rahul ji to please play the national anthem before we end this wonderful program. And I would like everybody to please stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। Thank you, ma'am. See you soon for in our new program, new next meeting. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. You can end the meeting, Indu ji.